आज हम योगा स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली 7 बजे हम योगा करेंगे और आज हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रेचिंग के लिए राइट फ्रॉम द फिंगर टिप्स हम टो तक के स्ट्रेच करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल स्ट्रेचिंग। मूव योर फिंगर्स। थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को। अप करेंगे, हैंड्स अप एंड स्ट्रेच मोर। स्ट्रेच, स्ट्रेच, stretch, stretch, hand stretch, aside, बाजू में करेंगे हाथ, फिर वहां पे भी स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स, हाथ भी स्ट्रेच करेंगे, जितनी अपनी छाती चौड़ी कर सकते हो उतना, और रिलैक्स। अगेन, लेट्स स्टार्ट विथ एल्बो, 1 2 3 4 5 6, front 1 2 3 4 5 6, back 1 2 3 4 5 and 6, and then twisting our hands 1, be there, यहाँ पे रहो, रुको थोड़ा देर, सांस लो, छोड़ो, keep your feet 1 feet distance between your feet, take a deep breath, breathe out and come back, 2, up and then turn on right, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, come back and relax. Let's move our shoulder on the clockwise direction, up, down, up, down, 4, 5 and 6. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And now hold your hands and tie them. धीरे धीरे ऊपर करो, 1, सांस लो पूरी तरह से, स्ट्रेच, स्ट्रेच, एंड धीरे धीरे सांस छोड़ो, 2. Similarly, on back side, stretch, up, 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 relax, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, और रिलैक्स। अगेन 1, स्ट्रेच करना है हैंड्स को। Those who have frozen shoulder, they should not do it. And हमारा अभी हम अपने मिडिल पोर्शन को स्ट्रेच करेंगे। So take a deep breath, hand aside, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकेंगे, थोड़ा ही झुकेंगे, hand on left side, your stretch should be on your right side, up, 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 breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, एक गहरी सांस लेके come back and relax, breathe out. On the other side, deep breath, stretch, अपना right hand नी को लगाना है, stretch up, 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 सांस लेनी है, छोड़नी है,
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Take a deep breath and come back. Now, हमारा ट्रंक हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करना है. सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. जितना ज्यादा इसका रेडियस रखे उतना ज्यादा अच्छा है. जितना ज्यादा रेडियस रखे 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, on the other side, clockwise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And relax. Hold your both the hands at the back this way and stretch. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Be here. Take a deep breath. Breathe out. Stretch. 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 Observe the stretches inside your body. Observe it. Take a deep breath. Slowly come back. Relax your hands. And on the other side again. Stretch. See this from the other side. This is the second iteration. Stretch. Up. Up. Normal breathing. Up. Normal breathing. Take a deep breath. And breathe out. And now, let's start some yoga, Sukshma yoga of thighs. So, very simple. 1, hold it, hold it, hold it. 6, 7, 8, 9, 10. And relax. With the other leg, 1, and balance yourself. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now this time you can have very slowly hold fingers inside your tarsals this way. 1, 2, 3. Stabilize yourself. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, it may happen that you may able to do it by one side. You may not able to do it with the other side because of imbalance we have in our body. So let's do it with the left leg and right hand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And relax. And you'll find it is very difficult afterwards. Okay. Let's do it with the Ardha Tadasana. So 1, take a deep breath and be on the toes. The toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And relax. Relax. And move your legs. करिए. हम लोग अब रिलैक्स करके
चलने की अपनी एक्शन करेंगे ताकि हमारा बॉडी फ्री अप हो जाए, राइट। कुछ कुछ आसनों में जब हमारा बॉडी फ्री अप हो जाता है तो जॉइंट्स और मेटाबॉलिज्म, हमारा जो रक्त अभिसरण है वो बहुत अच्छे से होता है। सो लेट्स डू सूक्ष्म योगा of just walking. Okay, so you can walk little faster. So when you walk little faster, you'll find that you may not feel anything in the initial stage, or where it becomes 4 to 5 minutes, it becomes very different, and it will give you a kind of sweat, and that is what the health is. स्वेट आना बहुत अच्छी बात है। अगर स्वेट आएगा तो ही हमारी हेल्थ मेंटेन होगी, right? So sweating is very essential. The health is governed always by the portion above thighs and up to tummy. So if this portion is thinner, your health is good. Okay. Let's continue it till we feel that yes, we can now in very good metabolic speed of our all biochemical pathways. तो हमारे अंदर में रक्त विसरण हो रहा है और संडे है, तो आज अगर हम योगा करेंगे तो हमें काफी भूख लगेगी। तो हम अगले लाइव सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में कैसे भूख को कम करना है ये भी लेंगे, टेक्निकल चीजें भी लेंगे। इसमें आप बने रहिए। तो एक काइंड ऑफ हेल्थ कैसे मेंटेन की जाएगी, कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ये सारा लेंगे, राइट। यू विल फाइंड वन मोर एडवांटेज कि जब हम योगा करते रहते हैं तो हमें कोई और ख्याल नहीं आता है। अगर हमें कोई और ख्याल नहीं आता है तो उस वक्त हम चिंता मुक्त रहते हैं, राइट। तो ये चिंता मुक्त रहने के लिए ये वक्त योगा का जो है हाफ एन आवर, हर बार ये हाफ एन आवर आपको हेल्थ प्रदान करेगा। तो रोज हम 7 बजे इस पे जुड़ेंगे और डेली हम योगा करेंगे, राइट। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। आपने देखा होगा कि अभी 1 मिनट से 1.5 मिनट हुआ है, बट अभी वॉकिंग या जॉगिंग ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट ऑफ इट हार्ट से ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारी सांस भी बढ़ती है। तो रेस्पिरेशन बढ़ने का एक ही कारण है कि ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की बढ़ती है, इसीलिए रेस्पिरेशन भी बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि 4-5 मिनट में आपका जो थिंकिंग था पहले कि स्ट्रेच क्या करेंगे, अभी हम लोग सो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, बॉडी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और बॉडी एक अलग स्तर पे चली जाती है जिसमें हम काफी जो डिफिकल्ट आसना है वो भी कर सकते हैं। तो जो लोग जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो लोग बहुत ज्यादा ना करें, कि उनको अपनी लिमिटेशंस पता चाहिए। कार्डियक प्रॉब्लम्स या फिर कोई हार्ट अटैक के पेशेंट है, उन्होंने
डॉक्टर से सलाह लेके ही ये सब करना चाहिए। तो अगली एक्सरसाइज जो होगी वो प्लीज जो भी जिन्हें भी वेरी हाई बीपी है या जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो ना करें। तो व्हाट वी नीड टू डू कि हमको एक जंपिंग करना है ताकि और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। 1. So when we are jumping, you are breathing in, breathing out. And relax. Come back to walking. Take a deep breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Let's start jumping again. And relax. Keep on walking at the place. And you will find again, you may have little bit of sweating. थोड़ा स्वेट आ रहा होगा, बट आपको रुकना नहीं है। अगर आप इसमें रुकते हो तो बॉडी आपको फिर से लिथार्जी ला लेती है। तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, स्लो डाउन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, deep breath out. Now, you'll find that our legs demand for oxygen is increased. Let's put our both the hands at the back. Okay. Touch your both the thumbs to each other. Hold your back and breathe out. Take a deep breath and bend back. Hold on there. धीरे धीरे वापस आना है। Take a deep breath again and breathe out. Again, take a deep breath and release your hands and breathe out. Next stretching, forward bending करेंगे हम। So very simple. Take your both the hands up. Before that, we'll do Tadasana. Bring your both the legs together. Hold it. Breathe in and take it up, 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 up. जितना अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। बॉडी एक संध एक रूप होनी चाहिए। अपनी टमी को आप और अंदर डिप्लीट कीजिए और अंदर लीजिए और हैंड्स दे आर टचिंग टू ईयर। हाथ अपने कान को टच करके रहने चाहिए। अब जितनी बॉडी को खींच सकते हो ऊपर खींचिए। नजर सामने। टेक ए डीप ब्रीथ
Slowly breathe out. Slowly breathe out and come back. And now we'll go for forward bending. So जिन्हें भी ब्लड प्रेशर है या फिर जिनको पेट की कोई बीमारी है, उन लोगों ने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को वर्टिगो है तो नहीं करना चाहिए। टेक इट डीप ब्रीथ, हैंड्स अप, सांस लीजिए, हाथ ऊपर, एंड स्लोली ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे सामने जाना है, और हाथ नीचे टिक सकते हैं उतना टिकाना है, नहीं टिक सकते हैं यहाँ पे रखना है। उसके भी अलावा अगर नहीं जा सकते हैं तो घुटने तक जाना है, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा हम जाके पूरा सर लगाए। एक्यूरेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स कंसिस्टेंसी विच इज इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ पूरी तरह से ब्रीथ आउट कीजिए, ट्राई कीजिए कि अगर अपना सर घुटनों पर लगा सके, लेकिन नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए सामने से ऊपर आइए, और धीरे से ब्रीथ आउट कीजिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। धीरे धीरे ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। विवेकासन, जो उत्थित विवेकासन है, जिसमें विवेक तैयार होता है हमारे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, वो आसन हम करेंगे। नमस्कार पोजीशन में आएंगे, ब्रीथ इन करेंगे, धीरे ब्रीथ आउट करेंगे। हमारा ध्यान पूरी तरह इस मध्य पे रहेगा, दोनों भुजों के बीच में, कपाल के बीच में, आग्नेय चक्र पे ध्यान रहेगा। और ब्रीथ इन, धीरे ब्रीथ इन करना है, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और एक स्ट्रेचिंग करेंगे, आंख आंख खोलेंगे और नमस्कार पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और एक स्ट्रेचिंग करेंगे। एक हाथ अपना लेफ्ट हैंड सामने रखेंगे और राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड को जोड़ेंगे, तो दोनों पाम्स हमारे जुड़ने चाहिए। राइट, स्ट्रेच रहेगा, आपके शोल्डर्स में स्ट्रेच आएगा, आर्म्स में स्ट्रेच आएगा। और गरुड़ासन, गरुड़ासन हो सकता है लेफ्ट हैंड अगर ऊपर से आए तो कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होगा तो जितना होता है उतना ही कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए। ओके, यथाशक्ति निरंतरम। ठीक है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कम बैक स्लोली एंड रिलैक्स। सिमिलरली राइट हैंड रखना है हमारा, और लेफ्ट हैंड लेके उससे राइट हैंड ज्वाइन करना है। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड ऊपर था, अभी हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर रहेगा, उल्टा। तो आपका स्ट्रेच जो है दूसरे साइड में आएगा। अर्ध गरुड़ासन, नासिका के अग्र से लेके तो हमारे पाम को छूते हुए हमारी नजर आगे चलनी चाहिए।
Take a deep breath and breathe out. Relax. Bring your hands to original position and then take a distance of 1 feet. 1 feet का distance लीजिए अपने दोनों पाँव के बीच में. Hands up and keep your both hands over your shoulder. And then you have to stretch, twist on left. And keep it there. Slowly take a deep breath and breathe out. Twist on right. And take a deep breath. And slowly breathe out. Relax. हमें अभी ध्यान करना है और ध्यान करने से पहले हमको वज्रासन में बैठना है. वज्रासन के लिए हम पोजीशन में जाने के लिए धीरे से स्ट्रेच करेंगे. टेक ए डीप ब्रीथ एंड बेंड योर नीज. घुटनों को मोड़ना है, सेम रखना है. अपनी पीठ की हड्डी सीधी तरह रखनी है. धीरे 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 नीचे जाना है. मालासन में बैठना है, दोनों हाथ घुटनों पर और सपोर्ट लेके हमें वज्रासन में बैठना है. वज्रासन में बैठ के हमें ध्यान करना है. धीरे धीरे सांस के ऊपर हमें अपना लक्ष्य केंद्रित करना है और सामने एक पॉइंट लेके उसकी तरफ बिना आंख बंद किए देखना है. हो सकता है आपका आईलिड बंद हो जाए पहले, लेकिन ट्राई कीजिए कि आंख में थोड़ी जलन होने तक देखना है. एक ही बिंदु की तरफ देखना है. आंख बंद ना हो पाए थोड़ी देर. जो आपको ऐसा लगता है कि आंख की जलन हो रही है तो धीरे से आंख बंद कर लीजिए. आंख में थोड़ा सा पानी आया रहेगा. आंख की जलन होती है तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए वज्रासन में. डीप ब्रीथ इन, आंखें बंद. डीप ब्रीथ आउट. डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट. डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट. आपका पूरा ध्यान आपके घुटनों में रहेगा. आपका पूरा ध्यान आपके पाँव पर रहेगा अभी, क्योंकि आप वज्रासन में बैठे हो. और वज्रासन में पूरे पाँव को स्ट्रेच होता है. जैसे ही वज्रासन में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, आप वज्रासन से अपने आप को ट्रांसफर कर दीजिए सुखासन, यानी नॉर्मल पाँव फोल्ड करके बैठ जाइए. नॉर्मल पाँव फोल्ड और अपने दोनों हाथ घुटनों पे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. पाँव को रिलैक्स कीजिए, सर को रिलैक्स कीजिए, हाथ रिलैक्स. कंधों को रिलैक्सेशन करना है. गला, फेस, छाती, स्टमक सारा रिलैक्स करना है. लोअर पोर्शन, आईज पूरा रिलैक्स करना है. छोड़ देना है. पूरी तरह रिलैक्स पोजीशन में बैठना है. आप सजग हो, लेकिन
आप जो जहाँ पे प्रेज़ेंटली बैठे हुए हो वहाँ नहीं हो, इस तरह आपकी कंडीशन होनी चाहिए। जहाँ हो वहाँ पे आपका मन वहाँ से दूर है, लेकिन आप फिर भी सजग हो, आप अलर्ट भले ही हो, लेकिन आप स्ट्रेस नहीं हो। इस तरह की कंडीशन हमारी चाहिए। अंदर से रिलैक्स चाहिए, शांत चाहिए। बिना किसी चिंता के अपने साँस पे, विद इन विद आउट पे कॉन्संट्रेट करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी भले ही रहे, लेकिन उसको रिलैक्सेशन देना है, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी थोड़ी बेंड हो जाए, हो सकता है किसी ने स्ट्रेच किया हो ज़्यादा, तो रीढ़ की हड्डी को कष्ट हो रहा हो, उसमें रिलैक्सेशन करना है, आँखें बंद रहेगी। अगर कहीं पे आपको स्ट्रेच लग रहा है तो उसको रिलैक्स कर लेना चाहिए और उसको मूव करके रिलैक्स पोज़ीशन में डालो। उस पोर्शन को, बॉडी के हर पोर्शन को रिलैक्स करना है, हर पार्ट को रिलैक्स करना है। द बेस्ट वे टू इमेजिन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको आप धीरे-धीरे रिलैक्स कीजिए। रिलैक्सेशन ये एक फिज़िकल चीज़ नहीं है, एक मेंटल चीज़ भी है। आप किसी पार्ट पे ध्यान देकर अगर एक्सप्लिसिटली ये सोचते हैं कि उस पार्ट को रिलैक्स करना है, तो हमारे जो सेंसर्स है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स से कन्वे होने वाले जो इम्पल्सेस है, जाके उस पोर्शन को रिलैक्स करते हैं। ये हमारी मेंटल और हमारी मानसिक जो ताकत है, ये सिर्फ ह्यूमन में है कि हम सोच के चीज़ों को रिलैक्स कर सकते हैं। अमेजिंग पावर वी हैव। Concentrate on your breath. Try to move the fingers of left hand, move the fingers of right hand, and slowly rub your palms over each other. Rub them over the face. ऑब्जर्व करो अपने हाथ में जो एनर्जी है वो फेस में जा रही है। रब them over the eyes,
ears, neck. अपने मान को अपने neck पे rub करो and very slowly remembering your mother in front of you. Open your eyes. Thank you so much. Thanks a lot. We'll meet tomorrow, 7 a.m. Thanks. Post your questions. Thank you so much. Great. Nice to have you here. Thanks a lot. We'll take a question. You can post your questions. Thank you.